Assalamualaikum everyone. Hi, this is Neha. Welcome back to my channel. In this video here, today we will continue the third part of that story only, which was a dream comes true. It was a story of a Birju we have already seen. So here it is the third part of that only. Even that time, even also I have given the meanings of that vocabulary words, whatever we had got in the lesson in that story. Here again we will see the meanings of that words. Here the vocabulary word is glossy. Glossy means smooth and shiny. Okay, तो स्मूथ एंड शाइनी हम नॉर्मली जानते ही है, बट हियर वी आर लर्निंग द न्यू वर्ड vocabulary that is glossy. Instead of using the smooth and shiny, we can use the glossy word. So here we will see the definition only for better memorizing. A magazine printed on glossy paper containing many color photographs. Here it is the example you can see. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक मैगज़ीन, नॉर्मली मैगज़ीन्स एवरीवन नोज दैट इट इज़ ए like glossy paper only. On that paper only we used to get different types of photographs, color photographs or black and white photographs, but that all the photographs we get in glossy only, like shining only. Okay, so as per the lesson here, Birju was a shoe shine boy. Okay, so here I have shown that also. You can see here, यहाँ पे शूज़ बिल्कुल स्मूथ एंड शाइनी है. ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. हम यहाँ पे मैगज़ीन भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्लॉसी का याद करने के लिए. ओके, सो हियर वी विल सी द नेक्स्ट वन. Next meaning is pouch. Pouch means a small bag. Okay, definition is a small flexible bag typically carried in a pocket or attached to a belt. यहाँ पर अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं. यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर बैग उसके शोल्डर पे लगा हुआ है. अटैच टू ए बेल्ट मतलब ये बेल्ट है, ये बेल्ट है, यहाँ पे बैग है. तो ये छोटा जो बैग रहता है उसको हम पाउच बोलते हैं. ओके, जो स्कूल्स ले जाते हैं, जो कॉलेजेस ले जाते हैं, दैट इज़ नॉट ए पाउच. पाउच मीन्स जहाँ पे हम सिर्फ पैसे या फिर सेलफोन या फिर कोई कार्ड्स रख सकते. टू दैट ओनली वी से पाउच. ओके, लेट्स सी द थर्ड मीनिंग हियर. Pat. Pat means touch gently on one's back. Definition is a quick, light touch with the hand. जो शाबाशी देते ना, कोई अच्छा काम करने पे शाबाशी देते, पीछे थपकी जो बोलते हैं हमारे पास, to that we say pat. Pat is here a new vocabulary word which that one we are learning here. Touch gently. By the name itself we can understand that. Okay, so we are learning the new word that is pat. Let's see the next one here. Wallet. Wallet means a purse carried by men. Wallet specially men ही carry करते. Women even also carries that, but normally बहुत कई ज़माने से men ही ज़्यादा use करते हो. Okay, so definition is a pocket-sized flat folding case for holding money and plastic cards. As you can see the example here, as I have put picture here of that wallet. ऐसे वॉलेट को हम, ऐसे बैग को हम वॉलेट बोलेंगे, जो नॉर्मली बॉयज़ ही कैरी करते, बॉयज़ हो या फिर आदमी हो. लेट्स सी द नेक्स्ट मीनिंग हियर. स्पीचलेस. स्पीचलेस मीन्स अनेबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ शॉक. Here we don't need any definition. By the name itself we can understand what is speechless. Speechless means जो शॉक हो जाते, शॉक होने की वजह से हम बोल नहीं पाते. एक्साइटमेंट में भी हो सकता है ये चीज़, और इमोशंस में भी हो सकता है, लाइक सैड टाइम भी हो सकता है ये. तो यहाँ पर खुशी का एक्सप्रेशन है. यू कैन सी द गर्ल हियर. आई एम स्पीचलेस, आई कांट बिलीव इट. जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हम, वो चीज़ हो जाती, तो दैट टाइम वी कुछ भी स्पीचलेस बोल नहीं सकते कि अरे ये चीज़ हमारे साथ हो गई बोल कर. सो हियर द vocabulary word is speechless, unable to speak because of shock. जो चीज़ हम बोल नहीं सकते शॉक के वजह से. Let's see the next meaning here. Nimble, quick and active. Nimble means here the nimble
What is a vocabulary word that we had got in the story of that only a dream comes true? So it means that quick and active. Quick and active means जल्दी, और active means जल्दी जल्दी कर देने को नहीं बोलते हैं. Active means like अच्छे से करना. Active means जल्दी जल्दी करके कोई काम ख़राब करना, वो उसको नहीं बोलते. Quick means जल्दी. Active, here we can see the definition also for better understanding. Quick and light in movement, moving with ease. बहुत अच्छे से ease होते हुए, मतलब बहुत अच्छे स्मूथली काम कर रहे, जल्दी भी करे, उतनी भी जल्दी नहीं, बट अच्छे से काम फिनिश कर देना. To that we say active, quick and active. Let's see the next meaning here. Here we have completed our whole meanings. 4 or 5 meaning, 5 or 6 meanings were there. Let's see the question answers of that lesson only, that story only. What did Birju do to earn a living? Birju polished shoes to earn a living. क्या बिरजू करता था? Did है यहाँ पर, तो did is past tense, do is present tense. Do means करो, करो means अभी बोल रहे हम, तो that comes in present tense. Did means कर दिए. Okay, तो did is past tense. What did Birju do to earn a living? जीने के लिए वो क्या कमाता, क्या करता था बोलकर यहाँ पे पूछ रहा हो क्वेश्चन में. सो आंसर इज बिरजू पॉलिश्ड पीपल्स शूज टू अर्न ए लिविंग. ओके, जीने के लिए वो लोगों के शूज़ पॉलिश करता था. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. वाई कुड नॉट बिरजू गो टू स्कूल? क्यों बिरजू नहीं जा सकता था स्कूल को? बिरजू कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज हिज फादर हैड डाइड एंड ही हैड टू अर्न एंड सपोर्ट हिज मदर एंड सिस्टर. बिरजू कुड नॉट गो टू स्कूल, वो नहीं जा सकता था क्योंकि बिकॉज हिज फादर हैड डाइड, उसके डैड का इंतकाल हो गया था. एंड ही हैड टू अर्न एंड सपोर्ट हिज मदर एंड सिस्टर. अगर वो स्कूल गया तो कौन उसके फ़ीस पे करेंगे और कौन उसके मम्मी को और उसकी बहन को सपोर्ट करेंगे जीने के लिए. सो वो अपना स्कूल छोड़ दिया और वो कमाने में लग गया अपने मम्मी और बहन को सपोर्ट करने के लिए. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन हियर. व्हाई डिड बिरजू सर्च फॉर द मैन? क्यों बिरजू सर्च कर रहा था वो आदमी का? ओके, जो उसको ट्रेन में मिला था. बिरजू सर्च्ड फॉर द मैन बिकॉज ही वांटेड टू रिटर्न हिज वॉलेट. वहाँ पर आदमी एक आफ्टर गॉट हिज शूज़ पॉलिश्ड ही फॉरगेट हिज वॉलेट ऑन द सीट ओनली ऑन द ट्रेन. ओके, तो वहाँ पर वो भूल जाने से बिरजू क्या करा, वो वॉलेट लेकर उसको ढूंढने लगा ताकि उसका वॉलेट उसको रिटर्न कर दे. लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन हियर. व्हाट डिड द मैन टेल बिरजू? बिरजू को वो आदमी क्या बोला था? द मैन टोल्ड बिरजू दैट ही शुड अटेंड स्कूल एंड बिकम ए डॉक्टर व्हेन ही ग्रू अप. वो आदमी बोला था बिरजू से, आप स्कूल अटेंड करना चाहिए और आपका जो भी सपना है वो पूरा करना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन हियर. हाउ डिड बिरजूज ड्रीम कम ट्रू? कैसे उसका सपना पूरा हुआ? बिरजूज ड्रीम केम ट्रू बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क. उसके सपना पूरा हुआ क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग था. ओके, तो यहाँ पर हाउ डिड, हियर ऑल्सो हियर वी हैविंग डिड. तो डिड जब भी आएगा नाउन के बाद जो चीज़ आती, लाइक बिरजूज ड्रीम कम है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे केम कर देंगे, पास्ट टेंस में कर देंगे. ओके, हियर ऑल्सो वी डिड सेम. डिड है यहाँ पे, मैन के बाद टेल को हम यहाँ पर टोल्ड कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओके, व्हाट आर द क्वालिटीज़ यू लाइक्ड इन बिरजू? कौन से क्वालिटीज़ है जो आप बिरजू में पसंद करें? बिरजू वॉज हार्ड वर्किंग एंड रेस्पॉन्सिबल एंड इवन ही वॉज ऑनेस्ट ऑल्सो. वो बहुत ईमानदार भी था, हार्ड वर्किंग भी था, रेस्पॉन्सिबल भी था और ऑनेस्ट भी था. बट हियर वी आर राइटिंग टू क्वालिटीज़ ऑफ बिरजू, दैट इज़ हार्ड वर्किंग एंड रेस्पॉन्सिबल. लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन हियर. Why do you think Birju's dream
कुड कम ट्रू। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि बिरजू का ड्रीम सच होना चाहिए। आई थिंक बिरजूज ड्रीम कुड कम ट्रू बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट जेंटलमैन। उसकी ईमानदारी की वजह से और वो जेंटलमैन की हेल्प से वो उसका सपना